Welcome students in our YouTube channel Discover International School collaboration with YCF. The brand of quality education. We provide very good facility for the preparation of JEE exam and NEET examination. Subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest update. Okay students, let us start today's video class. In previous video I have explained into 12th NCERT biology, different type of air pollutants, controlling mechanism and instrumental regulation of air pollutants. सब्सक्राइबर या फिर उसकी और जो 2-3 टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, गैसियस मटेरियल एंड एसपीएम्स को सेपरेशन करने की मैंने आपको टेक्निकल जो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एंड नीट एग्जामिनेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम आज मेनली पढ़ेंगे कि बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ भी ये टॉपिक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन और ओजोन डिप्लीशन, ये क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों ये जब डिप्लीट हो रही है ओजोन गैस तो हमारे लिए डेंजर बढ़ता जा रहा है, क्यों है ऐसा? इसके लिए सिंपल सी बात है, ओजोन इज फाउंड मेनली इनटू स्ट्रेटोस्फीयर at a height of 16 to 25 kilometer above Earth's surface. Okay, it help in the absorption of UV rays, which are very dangerous radiations comes from the sun on the earth. Okay, help in the increasing of very fast temperature. Okay, but due to depletion of the ozone, due to decomposition of the ozone molecules into oxygen, reduction of the amount of ozone take place. इसकी रिडक्टिविटी के कारण ये कम होती जा रही है और कम होने के कारण जो ये यूवी रेज अब्जॉर्ब कर रही थी स्ट्रेटोस्फीयर में, वो डायरेक्टली कहाँ आ रही है? डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ रही है, जिसके कारण ये यूवी रेज कई सारी खराब इफेक्ट डाल रही है, बैड इफेक्ट डाल रही है। मेनली 2 इफेक्ट तो बहुत ही डेंजरस है, इन आवर स्किन एंड इन आवर आई कॉर्निया, ये बहुत डेंजरस इफेक्ट है। इसके साथ साथ ये कुछ एक और भी जेनेटिकली प्रॉब्लम कोज करने वाले इफेक्ट भी डालते हैं, जिसको कहते हैं म्यूटेशन। ओके, तो ये एक आज के टाइम में एक और बड़ी प्रॉब्लम इससे पैदा हो रही है और वो है ग्लोबल वार्मिंग, इसी के कारण मेनली प्रोड्यूस हो रही है। सो लेट अस स्टार्ट ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, और वी कैन से डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? यू नो, O3 is the molecular structure of ozone. O3 is the molecular structure of ozone. It deplete into O2 plus half O2 and reform again into ozone. Into depletion of the ozone, CFC contribute very greatly. CFC, you know, CFC, chlorofluorocarbon aerosol form of compound, and UV rays help reformation of ozone from oxygen, complete oxygen molecule and nascent oxygen. Okay, this process continuously take place in our environment. If this and this forwarding and backwarding reactions are found into equilibrium, then no any depletion,
and no any gaining of much amount of oxygen can be occur into our atmosphere. But if this reaction or forwarding reaction take place at a high level, then depletion of ozone can be occur, formation of oxygen can be occur, but formation of ozone can't be occur, or if it will occur, then occur into a little amount. Okay, so this process will, if will take place, then it will cause a very great problem, reduction of ozone. Okay, and reduction of ozone cause a very great problem on our earth. You can understand, suppose that it is our earth. आप ये समझ लें कि मान लो ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पर एटमॉस्फेयर में नॉर्मली अर्थ लिथोस्फीयर पर किसी प्रकार की कोई भी ओजोन लेयर नहीं होती, बट एट ए हाइट ऑफ 16 और 25 किलोमीटर, 16 to 25 kilometer height into atmosphere, stratosphere is found. Stratosphere is found, in which stratosphere at equator पर 3 mm and पोल पर, साउथ एंड नॉर्थ पोल पर 4 mm थिक लेयर ऑफ ओजोन पाउंड। यानी कि अर्थ के लिथोस्फीयर में किसी टाइप की कोई भी, या स्ट्रेटोस्फीयर में जो सबसे नीचे नीचे की लेयर होती है जिसमें ऑक्सीजन मेनली होती है, इस लेयर में कभी भी ओजोन नहीं पाई जाती। ओजोन थोड़ी हाइट पर होती है, 16 to 25 किलोमीटर हाइट पर, जिसको क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, कंटेन ओजोन। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओजोन? ओजोन के फंक्शंस क्या हैं, तो हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ओजोन गैस है और ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज डन बाय द ओजोन। यूवी रेज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। 3 टाइप की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी ए एंड यूवी सी, यानी कि ये जो दोनों हैं ए एंड सी कैन अब्जॉर्ब by earth surface, but UVB cannot be absorbed by the earth surface. It mainly hit on the body of living being and cause some problems. For example, 2 चीज़ों पर डायरेक्टली इफेक्ट कर दी है, UVB अल्ट्रावायलेट radiation beam put on the effect of skin and eyes. आई में क्या क्या कोज कर दी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम पैदा कर दी है? स्नो, ब्लाइंडनेस, it can be absorbed by the cornea of our eyeball very easily and cause a very great problem, snow blindness। यानी कि इसको हिंदी में इसको मोतियाबिंद, लोकल लैंग्वेज में इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। एंड कैटारैक्ट, कैटारैक्ट दैट मीन धुंधलापन, आई साइड में धुंधलापन आ जाता है, ऐसे आ जाता है जैसे कि किसी बादल के अंदर से हम झांक रहे हैं, बाहर ठीक से दिखाई नहीं देता है। ओके, स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम कोज करता है? फर्स्ट
skin cancer known as melanoma. Okay, and a xeroderma pigmentosa, DNA म्यूटेशन. ओके, ये प्रॉब्लम है वो स्किन मिकोज की जाती है, स्किन में कैंसर हो जाता है, यानी कि ये मेलानोमा जो कैंसर की फॉर्म है वो स्किन के कैंसर की ही एक फॉर्म है, इसलिए इसको मेलानोमा भी कह देते हैं. जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये डीएनए म्यूटेशन के कारण इसके जो पिगमेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और सनबर्न जैसी स्किन दिखाई देती है. ऐसे लगता है जैसे कि एजिंग हो गई हो, यानी कि जो स्किन है वो बूढ़ी नजर आती है. एजिंग ऑफ है स्किन, ये जो प्रॉब्लम्स है वो इसके द्वारा खोज की जाती है. इसके बाद इसके अलावा और भी जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर टेक प्लेस. अब यहाँ बात ये आ रही है कि डिप्लीशन की प्रोसेस होती है, तो क्यों होती है ओजोन की. इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर, एट प्रेजेंट टाइम डिप्लीशन ऑफ ozone take place due to these utilization by the greedy human. What are? Refrigerators टेक्निक. बहुत सारे रेफ्रिजरेटिंग टेक्निक से वो यूटिलाइज की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, तरह तरह की प्रोडक्टिविटी के लिए, ऐसो आराम के लिए इन सब चीज़ों को यूज किया जाता है. एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स जो कि एयर कंडीशन की प्रोसेस करते हैं, वो एक तो होती है डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज. और इन सब में जो अभी एयर कंडीशनर है या रेफ्रिजरेटर है जिनको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज में लेते हैं, इन सब में एरोसोल काम में आता है, जिसको कहते हैं CFC. CFC मीन chlorofluorocarbon. That mean it is a compound of फ्लोरोफ्लोरीन एंड कार्बन. तीन मेन चीजें होती हैं, क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है और कार्बन होता है. इसकी कितनी फॉर्म होती हैं CFC की? बेटा दो फॉर्म होती मेनली. कौन सी? CF2Cl2, इसको फ्रीऑन 12 कहते हैं या CFC12 कहते हैं. CFC12 की जो एज होती है वो होती है 139 ईयर्स. ओ माय गॉड, वेरी ग्रेट लाइफ स्पैन. एंड CFCl3 इट इज नोन एज फ्रीऑन और CFC11 37 ईयर्स लाइफ स्पैन. यानी कि इतने सालों तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये इस एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है. यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे जो बनती है वो है क्या? मेनली इसकी हेल्प से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. CF2Cl2 डिकम्पोज इनटू CF2Cl plus Cl into gaseous form, also gaseous form. Okay, ozone gas depletion take place due to presence of chlorine molecule O2 plus ClO formation take place. This ClO again work with the half O2
and formation of oxygen molecule and free chlorine formation occur. यानी कि इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ बन रहा है. किसको तोड़ रहे हैं, ओजोन को तोड़ रहे हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मेन जो ये प्रोसेस हो रही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन. डिप्लीशन ऑफ ओजोन में देखिए O3 ब्रेक डाउन इनटू O2 प्लस हाफ O2, इट इज नॉन नेस्केंट ऑक्सीजन. एक ये हाफ O2 प्लस हाफ O2 इजकल्स टू फॉर्मेशन ऑफ O2 टेक प्लेस. और ये कैसे बनता है, ये बनता है बाय द हेल्प ऑफ इस फ्री क्लोरीन के. इसलिए कहा जाता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हेल्प इन डिप्लीशन ऑफ 1 lakh ozone molecule. Okay, very dangerous. So highly dangerous this compound CFC. By releasing chlorine, one molecule of chlorine can be deplete 1 lakh of ozone molecule. It is very greatly dangerous condition. Okay, and you know at present time human continuously utilize this gas CFC again and again into different kind of instruments. Okay, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कौन कौन सी कोज करता है. बहुत सारी प्रॉब्लम है, वैसे देखा जाए तो डेंजरस प्रॉब्लम है स्किन कैंसर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, मेलानोमा, एजिंग ऑफ स्किन एंड DNA म्यूटेशन. ओके, इन आई स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट यानी कि साइटनेस की कमी होती है, परमानेंट भी डैमेज हो जाती है. स्नो ब्लाइंडनेस यदि लॉन्ग टाइम तक बना रहे, परमानेंट आई डैमेज भी हो जाती है. ओके, तो इस तरीके से ओजोन डिप्लीशन होना एक बहुत बड़ी क्या है, एयर पोल्यूशन का रिजल्ट है. किसका रिजल्ट है, एयर पोल्यूशन का रिजल्ट है. सो वी शुड यूटिलाइज द होल gaseous material on pollutants in a certain limited amount so that our nature can be remain safe for us, so that we can utilize it for a long time in a sustainable form. Okay, तो बेटा बने रहिए हमारे साथ, वीडियो जो देखते रहिए उनसे समझते रहिए. टेक केयर.